الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد نبی علیہ السلام کے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار درس، چونکہ پہلے درس میں ہم کہہ چکے ہیں کہ جب مشرکین مکہ کے طرف سے یہ دو بندے آئے اور ان مسلمانوں کو بغیر پوچھنے کے ان سے واپس لینے کا مطالبہ اور اپنے ہاتھ میں گرفت کرنے کا مطالبہ کیا، تو اس وزراء نے اور اس ندماء نے ان کو بھی یہ بتایا کہ ہم بادشاہ کے بغیر، یعنی بادشاہ سے پوچھنے کے بغیر یہ لوگ آپ کو اس طرح حوالہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم پوچھ کے پھر آپ کو واپس کریں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کیوں یہ اصرار کرتے تھے کہ بغیر پوچھنے کے اور ان سے بغیر گفتگو کرنے کے ہمیں حوالہ کریں؟ اس میں اصل بات یہ تھی کہ یہ ان پر اپنے ظلم کا جو داستان تھا وہ دوبارہ ان پر شروع کرے، لیکن اب یہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، اسی وجہ سے ان حکماء سے اور بالخصوص شاہ حبشہ سے یہ لوگ واپس مانگتے تھے۔ تو اصل جب کہانی ہے وہ ابھی شروع ہوئی کہ شاہ حبشہ سے یہ پوچھ کے کہ یہ اس نے تحفے اور تحائف بھی ہمیں دیے ہیں، اپنے طرف سے لائے ہیں، اور ابھی تحفے اور تحائف دینے کے بجائے ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے ہیں وہ ہمیں بغیر پوچھ گچھ کے ہمیں حوالہ کر دیں۔ تو شاہ بادشاہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم کبھی اس کو اس طرح آپ لوگوں کو یہ حوالہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو لوگ آپ لوگوں کے ہاں سے وہ آ گئے، وہاں سے نکل کر یہ ہمارے ہاں آ گئے، ادھر پناہ لیا ہے، تو ہم اس کو کس طرح بغیر پوچھ گچھ کے بغیر گفتگو کرنے کے یہ ہم لوگ آپ کو حوالہ کر دیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات ان پر بہت گراں گزر گئی کہ ہم جو اپنے مقصد میں جس مقصد کے لیے آئے تھے، جس چیز کے لیے حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، تو ہم تو اس میں ناکام ہو گئے۔ لیکن بادشاہ نے پھر بھی ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اپنے وزراء سے ایک آدمی ان صحابہ کے پیچھے بھیج دیا، جو صحابہ نے شاہ حبشہ کے یعنی حبشہ میں ان صحابہ جو ہجرت کر کے انہوں نے ان ظالموں کے ظلم سے پناہ لیا تھا۔ تو شاہ حبشہ نے ان کے پیچھے ایک آدمی بھیج دیا کہ ان صحابہ کے ساتھ بات کرو جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے آئے ہیں اور آپ کا ہمارا دین بھی نہیں مانتے ہیں، العیاذ باللہ، اور آپ لوگوں کی بھی موافقت اختیار نہیں کرتے، یعنی اہل کتاب بھی نہیں بنتے ہیں اور یہ مشرک بھی نہیں بنتے، کوئی اور دین اس نے اختیار کیا ہے جو نہ ہمارے ساتھ موافق ہے اور نہ آپ لوگوں کے ساتھ موافق ہے، ایک نیا دین اس نے منتخب کیا ہے اور اختیار کیا ہے۔ شاہ بادشاہ نے ایک بندہ بھیج دیا کہ آپ چلے جائے اور ان کے ساتھ آپ بات کریں کہ وہ آ جائے اور ہمارے ساتھ ان لوگوں کے سامنے گفتگو کرے کہ یہ لوگ کن چیز کے لیے آئے ہیں اور وہ کس چیز کی وجہ سے اس نے پناہ لی ہے۔ تو مشرکین ادھر وہ پنس گئے کہ بھی ہمارا جو ان لوگوں پر ظلم کرنا ہے، ہمارے آگے ارادہ بھی ہے کہ ہم ان پر باقی زندگی میں ان لوگوں پر ظلم اور ستم کے انتہا کریں گے، وہ تو ہمارا سارا جو ظلم ہے ان سے پردہ تو وہ پردہ پاش ہو گیا ہے، ابھی وہ تو ہمارا ظلم وہ تو ان کو سامنے ہو جائے گا کہ اس لوگوں نے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنا گھر بار، اپنی زمین وہ چھوڑ کر ہم یہاں آئے اور یہ لوگ
जुल्म की इंतहा यहां तक उसकी पहुंची है कि वो हम इसको इधर भी नहीं छोड़ते। तो शाह हबशा ने जब बंदा भेज दिया तो उनके साथ बात हुई कि आप के बादशाह ने आपको तलब किया है। इधर मुसलमान ये तो वहां जुल्म से निजात पाने के लिए यहां पना ली है। मुसलमानों पर जब ये इम्तिहान आ गए कि बादशाह आप तलब कर रहे हैं, आपसे कुछ बातें करना, बातें तलब करना चाहते हैं, और वो भी आपके सामने होंगे, तो सारे सहाबा इकट्ठे हो गए और एक दूसरे के साथ मशवरा किया कि हम क्या कहेंगे। तो सहाबा जब जमा हो गए तो सहाबा ने मशवरा कर दिया कि हम वो कहेंगे जो हमने नबी अलैहिस्सलाम से सुना है और नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताए, वो बातें हम उनको भी करेंगे। लिहाजा हम नबी अलैहिस्सलाम के बातों में न कोई कमी और कोताही बिल्कुल नहीं करेंगे। वही बात बताएंगे जो हमारे पैगंबर ने हमें बताया है। हम जिसका कलमा पढ़ा या उनकी बातें उनको बताएंगे, क्योंकि वो कलमा पढ़कर हम अपने वतन घर बार छोड़कर यहां आए हैं। हम मुसलमान हो गए, इसी वजह से हम यहां आए। तो सहाबा भी आ गए और इधर दोनों का मुकालमा एक दूसरे के साथ शुरू हो गया। जब शुरू हो गया तो सबसे पहले उन लोगों ने मुसलमानों पर उंगली उठाई, क्योंकि उस वक्त ये अहले हबशा, ये अहले किताब थे और ये बादशाह को सलाम करने के बजाय सिजदा कर दी। तो मुसलमानों ने सिजदा नहीं किया। जब मुसलमानों ने सिजदा नहीं किया तो उसने मुसलमानों पर उंगली उठाई। ये देखो, ये आपके दरबार में आकर, बादशाह के दरबार में आकर बादशाह की जो ताजीम थी, बादशाह की जो सलाम करना थे, वो नहीं किया है। और एक रवायत में यह है कि बादशाह हबशा ने खुद इनसे पूछ लिया कि आपने हमारे को सलाम क्यों नहीं किया, यानी सिजदा क्यों नहीं किया। तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, जो इस्तिकामत के पहाड़ बन चुके थे, बादशाह के सामने भी जब एक बंदा ईमान लाते हैं और इसके दिल में ईमान मजबूत हो जाते हैं, तो इनके सामने बादशाह और फकीर दोनों एक बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसी वजह से मुसलमानों ने और सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने उनको एक बात बताई कि हमारा जब एक दूसरे के साथ हम मिलते हैं, यहां तक कि हम जब अपने पैगंबर के साथ मिलते हैं, तो उन्हें बताया कि कौन से पैगंबर? कहते हैं हमारे यहां जो एक बंदा आए हैं मोहम्मद, अल्लाह ताला ने उन पर किताब भी नाजिल फरमाई है, हम उनका कलमा भी पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसने हमें ये हिदायत दी है कि आप जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इस तरह कहा करो। जब हम खुद नबी अलैहिस्सलाम के मजलिस में जाते हैं तो हम नबी अलैहिस्सलाम को सिजदे के बजाय अब इस तरह सलाम फरमाते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और नबी अलैहिस्सलाम ने हमें भी फरमाया कि जब क़यामत वाले दिन और जब लोग जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में भी एक जन्नती एक दूसरे को भी यही सलाम कहेंगे। तो इसी वजह से हम सलाम कहते हैं, हम सिजदा वगैरह नहीं कहते, क्योंकि हमारे पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है अगर सिजदा है तो सिजदा सिर्फ एक ही जात के लिए है, वो अल्लाह है, और इसके अलावा हम किसी को सिजदा नहीं करते। बादशाह शाह हबशा ने जब ये बातें सुन ली तो उनको तरफ मुड़ के देख लिया कि ये जो बातें कर रहा है, ये तो उन सहाबा जो अभी तक उसके तरफ से कोई मुकर्रर नहीं हुआ था कि उनके साथ बात कर ले। ये तो सहाबा एक और पर एक जगह से बात करते हैं, दूसरा दूसरी जगह से बात करते हैं। लेकिन सारे सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन में से हज़रत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुंतखब होकर वो खड़े हो गए और बादशाह के सामने वो बयान करने लगे। जब बादशाह के सामने वो बयान करने लगे तो बादशाह को बताया कि अय्युहल मलिक, ए बादशाह, हम सब पहले जाहिल और नादान थे, हम जाहिल और नादान थे। दूसरे
बुतों के पूजे और सिजदे करते थे। हम किसी को नहीं जानते थे कि ये हमारा ये सिजदा उनको ये पता नहीं है कि किसने हमारे यहां सिजदा किया है और ये हमसे क्या मांग रहा है, क्योंकि वो न सुनते हैं न देखते हैं, न इनको ये पता है कि किसने हमारे पूजा और इबादत की। बहुत नादान थे हम। लिहाजा उसी बंदे ने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बता दिया कि अगर इबादत करनी है तो एक ही जात है, वो अल्लाह है। अगर सिजदा करना है तो एक ही जात है, अल्लाह है। उनके अलावा किसी के आगे आप सिजदा नहीं करना चाहिए। आप सिजदा न करो किसी के सामने। और इस तरह हम किस्मा किस्म बेहयाइयों में मुब्तला थे, उसमें हमें उस बेहयाइयों से मना करके हमें एक दीन आता है, तो हम क्यों उनके न माने। और इसी तरह कि हम पहले कराबतों को कता करते थे, उसने हमें कराबतों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने की हमें हिदायत दी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। और इस तरह पहले हम बहुत एक दूसरे के साथ बदसलूकी करते थे और हमको एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने की तलकीन देते हैं। और इस तरह हम एक दूसरे को यानी जो जबरदस्त तो हो कमजोर को कहा जाता था, उस पर जुल्म कर रहा था, लेकिन उसने उस बंदे ने यानी नबी अलैहिस्सलाम ने हमको एक दूसरे पर जुल्म करने से भी रोक लिया है। उस जात ने, उस मोहम्मद ने हमको एक जात की इबादत यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत, जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसने सारे जहान को पैदा किया है, जिसने दुनिया में हमें जो भी नजर आ रहा है उस जात ने पैदा किया है। वो सारे के सारे उनके कब्जे में है, वो सारे के सारे उनके अपने कुदरत से बनाया है, अपने ताकत से बनाया है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम उन्हीं जात की इबादत करें जो सारी दुनिया को रिज़्क देती है। इसी वजह से हम वहां से हमने पनाह ली है और यहां आपके यहां आए हैं। तो ये सारे बातें जब बादशाह के सामने उनको बता दिए कि और हमारे आबा व अजदाद ने ये बुत वगैरह का सिजदा और पुरसतिश करते थे, लिहाजा उसने हमसे मना किया है कि आप इस तरह न किया करो, क्योंकि इनके करने से आपको कुछ फायदा भी नहीं होते है और न आप लोगों को कुछ फायदा देते हैं, ना आपको कुछ जरूरत देते हैं। उनको खुद पता नहीं है कि किसने हमारी इबादत की है। जब इनको जो आप इनको खुदा कहते हैं अल-आयाज़ु बिल्लाह, और ये आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते, तो आप वैसे अपने आप को क्यों तकाते हैं कि उनके पीछे आप लगे हुए और उनसे इबादत भी करते हैं और उनके आप मांगते भी हैं। जिस जात ने आप लोगों को पैदा किया, आप उन जात से क्यों नहीं मांगते, यानी अल्लाह से क्यों नहीं मांगते। वो सारे बातें जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको किया, तो उनको बताया कि आपको किस चीज का हुक्म देते हैं। तो जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो हमें नमाज का हुक्म देते हैं, हमें रोजे का हुक्म देते हैं और हमें इस तरह ज़कात का हुक्म देते हैं और इस तरह हमको खुदा के राह में लोगों के साथ हमदर्दी और गरीब और नादारों के साथ हमदर्दी करने के ये सबक हमें वो देते हैं। इस तरह बातें हमें वो देते हैं। इस तरह जो बातें बाकी जो बातें उसके साथ हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो शाही हबशा के साथ जो बातें की है, इंशाअल्लाह बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले सबक में वो अगले दर्स में वो बयान करेंगे।